everyone. I hope you all are fine. In the last videos, we discussed about the formation of Constituent Assembly, what is the need of Constitution, how Constitution was established. This is all we had done in the first video. In the second video, we discussed about what are the features of the Constitution. We also discussed about the preamble of the Constitution, in which we held that preamble is the important part of the Constitution. Preamble is the basic part of the Constitution. In the features of the Constitution, we discuss about that Indian Constitution is the lengthiest Constitution in the world, drawn from various sources like rights we have taken from US, fundamental duties from Russia, parliamentary system from Britain, judicial system from US, directive principle from Ireland, freedom of trade concurrent list from Australia. So all these things we had discuss. Apart from that, we also discuss about the universal adult franchise concept, the citizenship and all that. So in this video, in this today's class, we will discuss about the fundamental rights. Very important for any kind of exam, whether it's a low level exam or it's a high grade exam, any kind of exam, this topic is the most relevant one. So let's begin. The chapter is Fundamental Right. Chapter name is Fundamental Right. As I told you, the Indian Constitution is divided into 22 parts, 12 schedule and 395 articles. The fundamental right is mentioned in part 3. It is mentioned in part 3 of Constitution. It is mentioned in part 3 of the Constitution. And we borrowed this concept. We borrowed this concept of fundamental right from United States of America. The borrowing clause of fundamental right is from United States of America. So, fundamental right are run from Article 12 to Article 35. From Article 12 to Article 35 of Indian Constitution is mentioning about the fundamental rights. So, we will take them one by one. Before that, I will write what all are the fundamental rights. Then we will take them by article by article. So, first is right to equality. The first fundamental right is right to equality. That is from Article 14 to Article 18. Then is right to freedom. Right to freedom from Article 19 to Article 22. Then right against exploitation. Right against exploitation. Article 23-24. After that, right to religion. Right to religion. Article 25 to Article 28. Then fifth, cultural and educational right. Cultural and educational right. Article 29 and 30. Then right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Article 32. So these are the 6 fundamental rights of the Indian Constitution that are mentioned in Indian Constitution, that is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights. Before that, I also tell you one thing. What are the different type of rights? What all are the different type of rights? Different type of rights. See, there are basically 3 types of right. One is constitutional right. Constitutional right. Second is statutory right. Statutory right. And third is fundamental right. So what all is the difference between them?
See, constitutional right means all those rights that are mentioned in the constitution. It includes fundamental right also, it includes it includes other rights also. So constitutional right means all those rights that are mentioned in the constitution, like right to property. It is a legal constitutional right. It is a legal constitutional right. Right to property. It is a constitutional right. Okay. So all other rights apart from fundamental right and statutory right are basically constitutional right. Statutory rights created by Act of Parliament. Created by Act of Parliament. By the Act of Parliament, these rights are created, called as statutory right. Like Parliament has made some laws, and from that law this particular right emerged. Like human right that are given under the Human Right Commission, these are the statutory right. Or right to information. Right to information is a statutory right maintained by the Act of Parliament. So any law that is made through the Act of Parliament, that it is a bill, when it get passed by both the houses and president sign it, it become an act. So it is a statutory right. Apart from that, there is a fundamental right also, which are mentioned from Article 12 to Article 35. So these are the fundamental rights. So these are the three categorization of proper rights. So let's begin with individual rights. So first is right to equality. Right to equality. Article 14 to Article 18. What all are there in right to equality, we will discuss. So first is Article 14 itself. Article 14 itself states that equality before law and equal protection of the laws. What is the meaning of this? Equality before law. Equality before law means all people are equal in the eyes of law, whether he's a man, he's a woman, he is rich, he is poor, he is a Bollywood celebrity, he is a cricketer, he is a street dweller, he is a beggar. All people are equal in the eyes of law. If someone committed a crime, like if a very high class man committed a murder, or if a very low class people who are just like beggars and all that, if they done the murder, the punishment for the murder is same in the eyes of law. So it cannot distinguish between the people. In the eyes of law, all people are equal. That is the meaning of equality before law. And equal protection of the laws means law is similarly situated for the same person. Similar applicability of law. Similar applicability of law to all persons who are similarly situated. Like if suppose there are two IS officers, one is of 1981 batch and another is also of 1981 batch. So the applicability of all salaries, pensions, all are implied to same to them. So all the people who are similarly situated, there is a proper reasonable classification is there. If there is proper reasonable classification and all people are similarly situated, that similarly situated means they have a same status, they belong to same homogeneity, they have a same kind of group, then law treat all of them as similar. So like should not be treated alike. Very important line. Very important line in this. Like should not be treated alike. This is Article 14. So Article 14 means equality before law and equal protection of the laws, similar applicability of law to all the persons who are similarly situated, like should be treated alike, like should not be treated alike. Okay. Then next is Article 15. Article 15, states shall not
State shall not discriminate. State shall not discriminate between the citizens. Between the citizens on the basis of gender, on the basis only of, एक second, on the basis only of religion, race, caste, sex and place of birth. So state shall not discriminate between the citizens on the basis only of these 5 grounds are important: religion, race, caste, sex and place of birth. Apart from these 5 points, state can discriminate on any ground. अब इसमें बात यह आ जाती है कि स्टेट का मतलब क्या है. What is state? So the state definition is given in Article 12. Article 12 says about state. State includes what all state consists of. State includes Parliament of India, Parliament of India. B, legislature of state, legislature of state. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ यहां पे एग्जीक्यूटिव भी लिख देते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव एंड स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज. तो बेसिकली स्टेट में 4 चीजें आती हैं: पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक LIC, ONGC, SAIL, BHIL, these all are the statutory non-statutory organization, और local authorities. Local authorities include municipalities and panchayats. Local authorities include municipalities and panchayats. So this is all state consists of. This is all state consists of. State consists of all these important things. So this is about Article 13. Now, Article 16 I will explain you when we will talk about the writs. Then Article 15 में हमने देखा state shall not discriminate on the basis between the citizen on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth. लेकिन but state can make special provision for the welfare of women's, children, etc. Similarly, state can make special provision for welfare of scheduled caste and scheduled tribe, for SC and ST. and सी देखिए अभी क्या हमने देखा आर्टिकल 15 में सबसे पहले हमने देखा स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे बाथिंग घाट है, ठीक है, पब्लिक वेल है, पब्लिक एंटरटेनमेंट पार्क है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता उन ग्राउंड्स पे. कौन से ग्राउंड्स पे? जो अभी हमने देखे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. सिमिलरली फिर हमने इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो ये बताते हैं कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टेट कैन मेक स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस.
उसके अलावा स्टेट कैन ऑल्सो रिजर्व seats in education institutes maintained by state fund. So any of the institute that is maintained by state fund like IIMs है, IITs हैं, इनमें रिजर्वेशन रखा जा सकता है SC and ST कैटेगरी के लोगों के लिए. This is Article 15. Now Article 16. State shall not discriminate on the basis of only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence in public employment. सो कोई भी सरकारी नौकरी है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, तो स्टेट उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे. धर्म के नाम पे, जनजाति के धर्म पे, कास्ट जो है आपकी उसके बेसिस पे, सेक्स मेल फीमेल, डिसेंट कि आपके ग्रैंडफादर कौन सी पार्ट से NRI है या नहीं है, या ओरिजिन कहां से है, प्लेस ऑफ बर्थ जहां से आपका बर्थ है, और रेसिडेंस, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन. स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है इनके वेलफेयर के लिए. तो इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है. इसमें एक और बात यहां पर आई थी, जैसे यहां पर रेसिडेंस लिखा है ना, तो रेसिडेंस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये एक्सेप्शन है. आंध्र प्रदेश के सिटीजन्स को रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस. जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो है, वहां पर उसी धर्म के आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है. जैसे मैं बात करूं कि नाथद्वारा का हमारा मंदिर है या फिर अजमेर शरीफ है. अब अजमेर शरीफ में अगर किसी को वहां पर रिलीजियस पोस्ट देनी है तो वो यूजुअली मुस्लिम सिटीजन को ही मिलेगी. सिमिलरली नाथद्वारा में अगर आपको किसी को कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन की पोस्ट है तो वो किसी हिंदू को ही मिलेगी. तो इस बेसिस पर रिजर्वेशन किया जा सकता है. तो ये समझ में आया. आर्टिकल 16 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence in public employment. For the welfare of SC, ST and OBC, state can make special provision, and similarly for religious denomination also they can make reservation. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बीपी मंडल कमीशन. बीपी मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ था कि वो देखे कि एक्चुअली में जो SC, ST और OBC की जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है. तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1979 में, और फिर 91 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा और उन्होंने इस रिजर्वेशन को ग्रांट किया फॉर द वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC. उन्होंने इसमें यह भी बोला था कि 10% रिजर्वेशन एक्सट्रीम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दे सकते हैं, लेकिन वो याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी. और उसके इसको इंदिरा साहनी केस में भी इसी बारे में बात हुई थी कि जो रिजर्वेशन देना है वो आप क्रीमी लेयर को नहीं दे सकते. क्रीमी लेयर एक वर्ड आया था इस केस में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि रिजर्वेशन जो आपको ग्रांट करना है वो क्रीमी लेयर्स को नहीं दे सकते. क्रीमी लेयर्स का मतलब है जिन लोगों की एक स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज्यादा की इनकम है, जैसे करंटली 8 लाख से ऊपर वाले अगर कोई हैं तो उनको आप
रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो वो क्रीमी लेयर जैसे मतलब कोई आईएएस का बेटा है, कोई जज का बेटा है, कोई राष्ट्रपति का बेटा है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, दे ऑल आर कंसिडर्ड इन द क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 देखा हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इट टॉक अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें यह बात थी अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म शैल बी प्रोहिबिटेड। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। ये महात्मा गांधी ने बहुत प्रमोट किया था कि जो छुआछूत के बेसिस पे आप डिफरेंस करते हो वो सब प्रोहिबिट होना चाहिए। जैसे कई बार पुराने टाइम में होता था, आज भी भारत के कुछ गांवों में होता है कि अगर मान लीजिए कोई लोअर कैटेगरी से, SC ST से है, या कोई ट्राइबल फैमिली से है, या बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी से है, तो उसको टेम्पल में एंट्री नहीं करनी दी जाती थी। पब्लिक वेल जो हैं, जो नल हैं, कुएं हैं, उनसे उनको पानी नहीं लिया जाता था। उसके अलावा लोगों को ये बोला जाता था कि भाई अगर यहाँ से ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी पानी भर रहा है या यहाँ पे नहा रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ से जनरल कैटेगरी का इंसान उसको यूज नहीं करेगा। तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में दिया गया है। अब अगर कहीं भी ये पता लगता है कि किसी भी लोअर कैटेगरी SC ST या OBC के किसी भी इंसान के साथ अगर गलत व्यवहार हुआ, तो वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर आ जाएगा एंड ही कैन फाइल अ कोर्ट केस टू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17। ये गांधीयन प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, सी आई टोल्ड यू इन आर्टिकल 14 दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सो किसी भी तरह का टाइटल, आजादी से पहले टाइटल दिए जाते थे राजा धीराज, महाराजा धीराज, बाहुबली, युवराज, शहजादा, शहजादी, इस तरह के टाइटल्स आप नहीं देंगे। एक्सेप्ट कौन से टाइटल्स अलाउड है? एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल। मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल आप दे सकते हैं। अब ये मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल मतलब, मिलिट्री टाइटल मतलब जैसे कर्नल है, विंग कमांडर है, इस तरह के टाइटल आप बिल्कुल दे सकते हैं। और एकेडमिक टाइटल्स भी आप दे सकते हैं, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री होती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, इस तरह के एकेडमिक टाइटल्स आप दे सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के टाइटल्स नहीं दे सकते कि जैसे आपने किसी को राजा धीराज या कुंवर साहब, इस तरह के कोई टाइटल्स आप नहीं यूज कर सकते। हाँ, एक और चीज, जो आपके अवार्ड्स है, जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न है, पद्मश्री है, ये भी आप दे सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई इंसान अपने नाम के आगे इनको यूज नहीं कर सकता, ना ही नाम के आगे ना ही नाम के पीछे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं। आज हम सपोज एक मीटिंग में बैठे हैं, वहां पे सचिन तेंदुलकर आते हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो हम ये यूज कर सकते हैं बिल्कुल कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सचिन अपने सिग्नेचर में नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। सिमिलरली अपने नेम प्लेट में वो नहीं लगा सकते घर के बाहर कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो ये जो टाइटल्स हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये आप नाम के आगे नाम के पीछे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट है, उसने किसी इंडियन को भी टाइटल दिया, तो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आप उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई फॉरेन ऑफिस है, वो इंडिया में उसका ऑफिस है, और किसी तीसरे फॉरेन कंट्री ने उसको टाइटल दिया, तो भी वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, जर्मनी ने अमिताभ बच्चन को अगर कोई टाइटल दिया है, तो अमिताभ बच्चन को प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी उस टाइटल को एक्सेप्ट करने से पहले। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो एप्पल का स्टोर जयपुर में, राजस्थान, इंडिया में खुल गया। अब एप्पल का जो फाउंडर है उसको अगर मान लो कि या एप्पल का जो अभी डायरेक्टर है उसको अगर मान लो जर्मनी को अवार्ड देना चाह रही है, तो विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन ही विल नॉट गिव अवार्ड टू हिम इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19,
आर्टिकल 19 विच टॉक अबाउट राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में ही बात आते हैं। सो अगर हम बात इंडिविजुअल आर्टिकल 19 की करें, आर्टिकल 19 तो इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं, जैसे 19(1)(a) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, freedom to move and settle in any part of country, in any part of country, in any part of country। उसके अलावा freedom to have trade, business of your choice। तो ये सारे चीजें इसके अंदर मेंशन है। तो ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी अपने थ्रू विजिबल साइंस, रिप्रेजेंटेशन, ट्रेडमार्क से हम अपनी बात को कह सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, हम असेंबली एक साथ लोग बैठ के मिल सकते हैं, लेकिन असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, विदाउट आर्म्स। ये जो असेंबली है ये विदाउट आर्म्स होनी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। हम कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, लाइक ट्रेड यूनियन, कोऑपरेटिव यूनियन हम फॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, हम भारत के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक दो जगह हैं जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं एज सच। फ्रीडम टू हैव ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ चॉइस, हम जो अपनी मर्जी का चाहे वैसा ट्रेड और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द एक्सेप्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज दैट यू शुड नॉट यूज द वर्ड्स लाइक इट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, morality, sovereignty and integrity of India, it led to the contempt of court, it creates the situation of defamation। इस तरह के शब्द आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लीजिए कोई ऐसा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई ऐसी बात कह दी जिससे हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो गई, तो वो गलत है। उससे इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर दिक्कत हुई, तो वो गलत है। उससे फॉरेन रिलेशन अफेक्ट हो रहे हैं हमारे, तो वो गलत है। उससे कोर्ट की बेइज्जती हो रही है, तो वो गलत है। तो इस तरह की चीजें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अलाउड नहीं होती। देन असेंबल विदाउट आर्म्स, आप असेंबल विदाउट असेंबली बना सकते हैं, लेकिन बिना आर्म्स के। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन में वही बात है। मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप आराम से सेटल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस है कि प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं उनके केस में ये चीज बैंड है। देन फ्रीडम टू हैव ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ चॉइस, आपके पास पूरा राइट है, आप कोई भी ट्रेड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। अगर कोई ऐसा प्रोफेशन जो गवर्नमेंट ने चूज किया है, ट्रेड कोई ऐसा, जैसे रेलवेज है, रेलवेज होलसेल गवर्नमेंट का है, एटॉमिक एनर्जी होलसेल गवर्नमेंट का है, तो द गवर्नमेंट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यू। और कुछ ट्रेड प्रोफेशंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिग्री भी रख सकती है। जैसे डॉक्टर, अगर आप अपनी क्लिनिक खोल रहे हैं तो आप क्या सर्टिफाइड होने चाहिए कि आप MBBS डॉक्टर हो। ऐसा ही नहीं कि कोई भी झोला छाप बंदा जो है वो डॉक्टर बन गया और काम चला रहा है। तो ये चीजें हो सकती है। Then Article 20 is conviction of offense, conviction of offense। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज 20 पार्ट A, no ex post facto law, no ex post facto law। What is the meaning of ex post facto law? तो नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है? एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी ऐसा लॉ जो पहले जिसके लिए पहले कोई पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन अब उसको पनिशेबल कर दिया गया, तो उसके लिए सजा नहीं मिलेगी। कंफ्यूज हो गए आप? देखो बहुत सिंपल है। ये पेन है, इस पेन को अगर मैं उछाल कर यूं कैच कर रहा हूं, आज इसकी सजा 0 है, लेकिन 3 साल बाद इसकी, या 2 दिन बाद, या कल से इसकी सजा 5 साल हो जाए, तो क्या होगा? तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैंने ये काम किया था तब ये ऑफेंस नहीं था। ठीक है। सिमिलरली आज इस पेन को कैच किया मैंने, उसकी सजा 3 साल है, कल ये 6 साल हो जाती है, तो मुझे सजा कितने साल की मिलेगी? मुझे सजा 3 साल की मिलेगी, क्योंकि जब मैंने ही ऑफेंस किया था तब इसकी सजा 3 साल ही थी। तो नो एक्सपोज फैक्टर लॉ मींस किसी पुराने एक्ट के लिए, पुराने काम के लिए अगर नया लॉ बनाया जाता है तो पुराने काम पे करा गया हो काम दंडनीय नहीं होगा।
This is no ex post facto law. Then 20 part B is double jeopardy. Double jeopardy. सेम ऑफेंस के लिए कोई, यू कैनॉट पनिश अ पर्सन फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस. सेम ऑफेंस के लिए आप किसी इंसान को 2 बार पनिश नहीं कर सकते. जैसे मैंने थेफ्ट किया, थेफ्ट करने के बाद में मुझे 5 साल की जेल हुई. अब 5 साल की जेल अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दी तो वापस ये नहीं होगा कि उसी थेफ्ट, उसी ऑफेंस के लिए मुझे वापस हाई कोर्ट सजा दे रहा है. हाँ, अगर मैंने आज थेफ्ट करा, 5 साल कंप्लीट हो गया, फिर थेफ्ट कर रहा हूं तो 5 साल सजा हो सकती है. लेकिन अगर आज मैंने थेफ्ट करी, चोरी करी, सेशन कोर्ट ने मुझे 5 साल की सजा दे दी और फिर हाई कोर्ट में किसी ने अपील करी और मेरे 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट मुझे फिर 5 साल की सजा दे देगा. इट इज नॉट लाइक दैट. तो सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती. हाँ, लेकिन मान लो मैंने 5 साल की थेफ्ट हुई है, मेरी थेफ्ट की सजा दी है, 4 साल 11 महीने 29 डेज मेरे हो गए और कल सुबह मैं बरी होने वाला हूं. उस बीच में मैंने किसी का मर्डर भी कर दिया, तो ये डिफरेंट ऑफेंस है, उसके लिए फिर मुझे सजा अलग दी जा सकती है. दैट इज डबल जियोपार्डी. No person can be punished twice for the same offense. That is double jeopardy. And third is no self-incrimination. No self-incrimination. What is the meaning of this? इसका मतलब होता है no one can be compelled. No one can be compelled to be witnessed against himself. No one can be compelled to be witnessed against himself. No one can be compelled to be witnessed against himself. आप किसी को फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि तुम अपना गुनाह कबूल करो. जैसे एक बंदे को अरेस्ट करा, अब उसको कोर्ट में लेकर गए, कोर्ट में जो अगेंस्ट वाला वकील है वो ये नहीं कह सकता तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा, तुम करो अपना गुनाह कबूल. उसकी चॉइस है, आपको फैक्ट्स लाके प्रूफ करना है कि उसने गुनाह किया है. तो यू कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू कंपेल्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ. सिमिलरली कोई नार्कोटिक टेस्ट है, ब्लड स्पेसिमेन है, वो आप ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी एक बार प्रायर आपको बताना पड़ेगा उस इंसान को. सो दिस इज अंडर आर्टिकल 20. ये 3 पार्ट है. देन आर्टिकल 21, most important article of the constitution. Article 21 is right to life and liberty. Right to life and liberty. जीने का अधिकार हमें यही आर्टिकल देता है. और सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, डिग्निफाइड लाइफ, नॉट राइट ओनली टू राइट ऑफ लाइफ, बल्कि डिग्निफाइड लाइफ. तो राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है. राइट टू हैव पीसफुल एनवायरमेंट, राइट टू स्लीप, राइट टू हैव फ्रेश एयर, राइट टू हैव वाटर, राइट टू हैव शेल्टर. These all came under right to life. And right to life is not just only live, सिर्फ जी नहीं रहे, dignified, इज्जत वाली जिंदगी हम जी रहे हैं. Similarly liberty, liberty हमारे पास thoughts की, belief की, expression की, faith की, worship की, we all should have that kind of liberty. So this is under article 21. Next is article 21A. Article 21A, free and compulsory education. Free and compulsory education for the children between the age of 6 to 14. 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होगा. ये ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट से. It was added by 86th amendment. It was added by 86th amendment. 2002. तो 86th amendment 2002 से इसको ऐड किया गया था कि there should be a free and compulsory education for the children between the age of 6 to 14. Next is Article 22. Article 22 talk about preventive detention. Preventive detention. What is the meaning of preventive detention? Preventive detention मतलब किसी भी इंसान को आप illegally detain नहीं कर सकते, illegally capped नहीं रख सकते. मतलब whenever a person is arrested, he should be produced to nearby magistrate
विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। देन he should have his lawyer, वो अपना लॉयर या एडवोकेट रख सकता है अपनी चॉइस का। तीसरा, grounds of arrest should be communicated, grounds of arrest should be communicated, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आप कम्युनिकेट करेंगे। चौथा, पर्सन कैनॉट बी डिटेन्ड, पर्सन कैनॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months, for more than 3 months unless an advisory board is there। अगर एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करी गई और उसने उस पर्सन का डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा बढ़ा दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज 3 महीने से ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते और आपको ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे कि आपने डिटेन क्यों किया है। हाँ, अगर वही ग्राउंड्स कंट्री के सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हैं तो ग्राउंड्स बताने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज आर्टिकल 22। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 and 24, that is right against exploitation, right against exploitation। आर्टिकल 23 कहता है, it put prohibition on traffic in human being, traffic in human being, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त पे बैन लगाता है। इंसानों की अगर बाइंग और सेलिंग हो रही है उस पर खरीद लगाता है। प्रोहिबिशन ऑन फोर्स्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाता है। फोर्स्ड लेबर मतलब इच्छा के विपरीत, मेरी इच्छा नहीं है काम करने की तब भी मुझसे काम करवाया जा रहा है। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, बिना पैसों के काम करवाया जा रहा है। तो दैट इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 इज नो चिल्ड्रन below the age of 14 will work in hazardous occupation। कोई भी ऐसा hazardous occupation है तो 14 साल से कम के बच्चे को आप उसमें नहीं डाल सकते, आप उससे वो काम नहीं करवा सकते। जैसे चूड़ी बनाने का काम है, कारपेट बनाने का काम है, या आपको कोई केमिकल्स का काम है जो बहुत डेडली है, तो इस तरह के काम आप 14 साल से कम के बच्चे को नहीं करवा सकते। 18 से ऊपर आप फिर भी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन 14 साल से नीचे ये काम आप नहीं करवा सकते। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट और इनोसेंट वर्क अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर बच्चा कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी कर रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बच्चा अगर डांस इंडिया डांस में डांस कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पर भी ऐसे काम नहीं करने की जैसे बच्चा आग में से कूद रहा है या बच्चा छतों पे से कूद रहा है, ये काम नहीं कर सकता। इनोसेंट और एंटरटेनमेंट के लिए वो काम करे जा सकते हैं जो कि लाइट है। जैसे बच्चा हंसा रहा है, बच्चा हंस रहा है, नॉर्मल डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आर्टिकल 25 to 28 talk about right to religion, जिसमें आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। मतलब आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके सेरेमनीज को। जैसे दिवाली पे आप दिए जला सकते हैं, होली पे आप रंग खेल सकते हैं, रक्षाबंधन पे राखी बांध सकते हैं, ईद पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, अपने रिलीजन को फैला भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने रिलीजन में कन्वर्जन नहीं कर सकते। फोर्सफुल
कन्वर्जन दैट इज फोर्सफुल शुड नॉट बी डन। मतलब आप किसी को फोर्सफुली एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज नहीं करने के लिए नहीं कह सकते। देन आर्टिकल 26, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को जैसा चाहें वैसा मैनेज कर सकते हैं। लाइक यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर योर रिलीजन, you can use that property, you can administer that property, you can manage your religion as of whatever you want to do, okay, but it should not be do anything that disturb the public order or morality। जैसे अगर आप मान लीजिए आप पूजा या आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, you cannot do that। then article 27, freedom to pay taxation, नो टैक्स। मतलब आप कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आप रिलीजियस पर्पसेस के लिए टैक्सेबल मनी अपना दे रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे एनी काइंड ऑफ मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, वॉलंटरी डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन नो वन कैन कंपेल यू टू पे द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ योर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल 28 कहता है अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम टू ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है तो आपके पास फ्रीडम है, आप उसको अटेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे अगर किसी मंदिर, कोई स्कूल है, वहां पे गणेश जी की पूजा चल रही है, अब कोई मुस्लिम बच्चा है या कोई सिख बच्चा है, क्रिश्चियन बच्चा है, वो उस इंस्ट्रक्शन को अटेंड नहीं करना चाहता, तो ही कैनॉट, वो अटेंड नहीं करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 14 साल से कम का है, if he is less than 14, then in that case parental guidance, parental opinion चाहिए होगी। और अगर वो 14 साल से बड़ा है तो उस केस में his self opinion। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ उन स्कूल्स में जो कि मेंटेन्ड है पब्लिक फंड से, मेंटेन्ड बाय पब्लिक फंड, सरकार के पैसे से जो सरकारी स्कूल है, ये सिर्फ उनकी बात हो रही है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहां अगर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपेल कर सकता है कि हाँ भाई आपको ये सुनना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूल है तो वहां पर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे ही नहीं सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट गिव इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस इज आर्टिकल 28। नाउ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। Article 29 and Article 30, cultural and educational right, cultural and educational right। So Article 29, all minorities, हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, जो 6 माइनॉरिटीज हैं, has the right to conserve their language, custom, tradition। जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो अपने कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन को, जो रिलीजन है, प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकते हैं। देन आर्टिकल 30, इसमें माइनॉरिटीज जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों कवर होंगी। तो आर्टिकल 30, minorities can establish their own education institute, and they can give instructions in mother tongue also, कोई भी माइनॉरिटीज जो हैं वो अपना खुद का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पर रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं, अपनी मदर टंग में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी टीचिंग नहीं देनी कि आतंकवादी कैसे बनो, जिहाद कैसे फैलाओ, इस तरह की नहीं। पीसफुल एंड एजुकेटिव रिलीजियस टीचिंग दी जा सकती है। दैट इज इन आर्टिकल 30।
नाउ आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 हटा दिया गया है, इट इज omitted. It is a new legal right under article 300A. It is not a fundamental right, it is legal right, and this can be done through 44th amendment. 44th amendment से right to property fundamental right नहीं है, अब वो legal right है. क्यों करा गया ऐसा? देखिए, if someone has a property and government want to construct a hospital, metros, pillars, or have to construct a public education institute, or have to construct a public park, they have to snatch that property. And if that property is snatched, the person will go to the Supreme Court or to the High Court. In that case, the development projects will get hampered. So for the protection of these kind of development projects, government imposed that right to property is not a fundamental right under Article 31. It's a legal right under Article 300A. इसको भी देखेंगे कि हाई कोर्ट के रिट्स पावर में क्या डिफरेंस है. और लास्ट है आर्टिकल 32. Article 32 is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की. If any of your fundamental right is violated, if any of your fundamental right is breached, you can go directly to the court for enforcement of your fundamental right. अब इसी के कंटेक्स्ट में हम रिट्स देख लेते हैं कि रिट्स क्या है. पहली बात तो रिट होता क्या है. रिट इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच वन कैन प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट. इट्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट फॉर विच अ पर्सन कैन एनफोर्स हिज राइट इन कोर्ट. अब रिट में दो तरह की रिट्स हैं. एक तो आर्टिकल 32 की रिट और एक आर्टिकल 226 की रिट. आर्टिकल 32 में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. Directly approach to Supreme Court, whereas in Article 26 you can approach to High Court. Okay, Article 32 के केस में फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई होता है. मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. Whereas Article 226 is for fundamental right and legal right. मतलब अगर आपकी किसी ने प्रॉपर्टी ले ली गलत तरीके से और आपको कोर्ट में जाना है तो यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. यू कैन गो टू द हाई कोर्ट फर्स्ट अंडर द लीगल राइट आर्टिकल 226. बट हाँ, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ऑफ योर चॉइस. तो मतलब आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं. ठीक है, तो अब रिट्स देख लेते हैं. रिट्स कौन कितने तरह की होती हैं. देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स. 5 टाइप ऑफ रिट्स. फर्स्ट इज habeas corpus. Habeas corpus, it means to have the body. To have the body in front of court. To have the body in front of court. Whenever any person is arrested, he should be produced within 24 hours to the magistrate. And if the magistrate find that person guilty, he will send him for the jail for the trial. And if he found him unguilty, non-guilty, then in that case he should be set free. तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, दैट इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. ये हमने आर्टिकल 22 में भी देखा था. ठीक है. देन सेकंड इज रिट ऑफ मैंडेमस. रिट ऑफ मैंडेमस मींस वी कमांड. वी कमांड. When any higher authority instructs or orders the lower authority to do or not to do any kind of act, it is called as writ of mandamus. मतलब हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने किसी आईएएस ऑफिसर को बोला आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है, तो उस केस में इट इज कॉल्ड एज मैंडेमस. सीएम ने किसी आरएएस अफसर को ऑर्डर किया कि ये काम आज हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिट ऑफ मैंडेमस. थर्ड इज क्वो वारंटो. Quo warranto. It means under what authority? Under what authority? Suppose किसी पर्सन ने कोई पब्लिक ऑफिस इलीगली होल्ड कर रखा है. कोई पब्लिक ऑफिस है उसको इलीगली होल्ड कर रखा है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो रिट पास हो सकती है कि भैया आपने किस बेसिस पे ये पोस्ट होल्ड कर रखी है. अगर नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन तो नीचे उतर जाओ इस पोस्ट से. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, प्रधानमंत्री के चाचा का लड़का 10th पास है. ठीक है, और बिजली विभाग में
एक पोजीशन आई जिसमें चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर, ओके, और वो 10th पास है, उसको वहां लगा दिया, आराम से नौकरी कर रहा है। फिर किसी ने वहां पे PIL फाइल करके पूछा कि भैया इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और बाद में पता चला कि 10th पास है। तो अगर आपको इंजीनियर है हो यार, अगर आप CA हो तो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, अपनी बीटेक की डिग्री लेनी पड़ेगी, CA के लिए ICAI का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उस केस में उस पर्सन को उस जॉब से हटा दिया जाएगा। दिस इज रिट ऑफ क्वो वारंटो। नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। टू फॉरबिड, टू फॉरबिड का मतलब है यहां पर व्हेन हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हाई कोर्ट, व्हेन एनी हायर कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट, प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट टू नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग और प्रोहिबिट हिम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जजमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन। जैसे सपोज करो न्याय पंचायत है या न्याय ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय ने किसी को 10 साल की सजा दे दी। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बोला भैया तेरे पास अथॉरिटी क्या है 10 साल की सजा देने की, और उसके डिसीजन ने प्रोहिबिशन लगा दिया। सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी बिना हाई कोर्ट से कंफर्म करे हुए, तो हाई कोर्ट उस सजा को रोक देंगे ये क्या कि आपके साथ अथॉरिटी नहीं है, आपने कैसे दे दी, आप दे सकते हो फांसी लेकिन हमारी परमिशन के बाद। तो टू प्रोहिबिट द जजमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और लास्ट है इसमें सर्श्योरी। सर्श्योरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। अगर मान लो किसी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो जो अबव हायर कोर्ट है वो उस जजमेंट को क्वाश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे, लैक ऑफ फैक्ट के बेसिस पे, किसी गलत इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। अब जैसे सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, और फांसी की सजा देने के बाद में उस बंदे को चढ़ा रहे हैं फांसी पे, उतने में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इसको नीचे उतारो, ये डिसीजन क्वाश कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिट ऑफ सर्श्योरी। अब आपका कंफ्यूजन होगा सर प्रोहिबिशन और सर्श्योरी में डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन होता है जजमेंट देने से पहले ही प्रोहिबिट कर देना, और सर्श्योरी होता है जजमेंट देने के बाद में उसको कैंसिल कर देना। दिस इज कॉल्ड एज रिट। ओके, तो ये हमने देखे। इसके अलावा मैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी वो बताता हूं आपको। एक तो जैसे मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 13 में क्या था। आर्टिकल 13 ये कहता है all laws that are inconsistent to fundamental right, that are inconsistent to fundamental right are void. All laws that are inconsistent to fundamental rights are void. कोई भी ऐसा लॉ आपने बनाया जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, उसको अपोज कर रहा है, तो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आर्टिकल 31 को अमेंड किया ही था ना उन्होंने 44th अमेंडमेंट से, तो बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकते हो आप फंडामेंटल राइट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो, कोई भी चेंज कर रहे हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए, जो कि डिसाइड हुआ था केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस से ये डिसाइड हुआ था कि आप कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट अगर आप कोई भी चीज को वायलेट कर रहे हो तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात मैं बोल रहा था, अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी है, इसको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी देखेंगे। कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 में, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 प्रोटेक्टेड रहता है। आर्टिकल 20 एंड 21 आपका प्रोटेक्टेड रहता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन रहती है। लेकिन अगर यही नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल कारणों की वजह से लगी है, अगर ये इंटरनल कारणों की वजह से लगी है, तो 19, 20 और 21 तीनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर ये नेशनल इमरजेंसी वॉर की वजह से लगी है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, इंडिया चाइना में वॉर हो गया, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 प्रोटेक्टेड रहता है, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये था आज की क्लास में फंडामेंटल राइट। मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ राइट्स देखे, लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट। लीगल राइट जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, स्टैट्यूटरी राइट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट जो आपके 6 फंडामेंटल राइट है। फिर 6 फंडामेंटल राइट होता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इक्वालिटी में हमने 4 देखे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिशन और अनटचेबिलिटी और टाइटल पे, ठीक है। फिर हमने देखा 19 से फ्रीडम, 20 में कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, हमने 3 चीजें देखी थी, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ,
कोई भी पुराने एक्ट के लिए पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। सी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। फिर 21 हमने देखा राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर 21A हमने देखा राइट टू एजुकेशन। 22 में हमने देखा राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, 24 घंटे के अंदर अदालत के जज के सामने पेश करना है, लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस एडवाइजरी बोर्ड नहीं है। 23 और 24 में हमने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बात करी कि विमेन चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर है, ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, 14 साल से कम के बच्चे को हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते। राइट टू रिलीजन की हमने बात करी, 25 से 28 में अपना रिलीजन आप चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, टैक्सेशन पे करने के लिए आप कंपलसरी नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करना जरूरी नहीं है। 29-30 हमने माइनॉरिटीज की बात करी, वो अपने कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। 31 हमने देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट से, 300A में लीगल राइट बन गया। 32 हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखी, जिसमें रिट देखी हमने 5। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिट में अंतर है, सुप्रीम कोर्ट की रिट में आप फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो, हाई कोर्ट में लीगल और फंडामेंटल दोनों के लिए जा सकते हो। फिर हमने 5 रिट को देखा, हेबियस कॉर्पस, टू प्रेजेंट द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, मैंडेमस, टू ऑर्डर कमांड, को वारंटो, किस बेसिस पे आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, प्रोहिबिशन, आप प्रोहिबिट कर देते हो लोअर कोर्ट को जजमेंट देने से पहले, सर्शोरी में आप क्वाश कर देते हो उनका डिसीजन। ये हमने देखा रिट्स में। और लास्ट हमने आर्टिकल 13 में देखा कि जो लॉस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं वो वॉइड हो जाएंगे। और फिर हमने केशवानंद भारती केस में देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी अगर कंट्री में लगती है तो 20 और 21 प्रोटेक्टेड रहते हैं, वॉर और एक्सटर्नल थ्रेट पे लगी है तो, और अगर इंटरनली लगी है, आर्म रिबेलियन की वजह से लगी है, तो आपका 19, 20, 21 प्रोटेक्टेड रहता है। थैंक यू सो मच। आई होप you all like this class. In next class we will continue with directive principle, directive fundamental duties और precedent हम start करेंगे. Thank you so much. Take care of your health.